how it goes. अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, उम्मीद है कि आपको याद है। जल्दी होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क। वो हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिमान, हुआ मुस्लिम। Once again, हुआ मुस्लिमान, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिमान। मुस्लिम, या मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। बोलो या मुस्लिमान, मुस्लिम, मुस्लिमात, मुस्लिमा, मुस्लिमात। ता है, ता वो प्लूरल में। The formula is very simple. I gave you the formula. Any word you add this ta, this round ta and marbuta is called as, then it becomes that word and ending with that particular ta. Sometimes this can be written, this might be written like this also. Now, how do you identify a noun in Arabic language? Arabic आपके सामने एक पेज आएगा, तो उसमें से nouns को identify करना. How will you identify that? हम मुस्लिम। No, just a noun. How do you tell that this particular word is a noun? तन्वीन। That is important. Did you identify some noun, tanweens or some nouns? How many did you identify? You should have a Quran. इसमें चार्ट में नहीं आपने कहा था कि आपको कुरान में मार्क कुरान नहीं लेना है, बोले कि क्लास को आना, you have to start, मार्क go get it. मेरा भी कुरान देखिए मेरा असाइनमेंट मालूम था। So only when you do that, you will get the idea. As to looks like brother is not done. That's why he's not having that idea. Although I had said, see, my name is what? What's my name? Khalid. Yeah. In reality, it is Khalidun. Khalidun. But we say Khalid. Why? Why? क्योंकि it's the usage of Arab. Yes, exactly. Got it? Arabs, their practice is that when they stop at a particular word, if they say just one word, or if they say a chain of words, a sentence, or even in Quran you will see when you come and stop at an ayat, what happens? Alhamdulillah Rabbil Alameen. How is it spelled? Rabbil Alameen. Now, what happens with noon? What do you think is there? दिन में 1000 बार पढ़ते हैं, दिन में 20 टाइम तो पढ़ते हैं कम से कम. फिर रमज़ान के महीने में, the month of Ramadan, do you know how many times you recite Surah Fatiha? Surah Al-Fatiha. Do you know how many times you recite? Do the homework and get back to me tomorrow. And we do that and we don't know how it is written. I give you options. There can be a un, there can be a in, there can be a an, there can be a u, there can be a e, there can be a a, there can be a shakin, there can be a shadda, there can be a madda. What could be there on nun? I'm not testing you, but this is the problem with us. We read it just like the way it has been taught. We just keep on reading without bothering what is there. Forget the spelling. I'm not going to teach you spelling. But yes, जब हमें नहीं मालूम होता तो माना के पर हम कैसे जाएंगे? Okay. So what happens is it is Alhamdulillah Rabbil Alameen. क्या होता है? आलमीन। हाँ? दो पेश होता है। देखो क्या होता है? देखो किताब में ज़ेर है, ज़ेर, हाँ? ज़ेर, आलमी, आलमीना, ज़ेर बोलते हैं, सुज़ेर नहीं बोलते, ज़बर। Sometimes we mix up the words because we don't use that in. Why it happens? क्यों ऐसा होता है कि एक का दूसरा बोलते हैं? इसलिए कि आदत नहीं है हमारे को, कह करके उसकी आदत नहीं पड़ी है। आलमीना, लेकिन चेहरा तो क्या बोलते?
आलमीन। That means अरब जब भी ठहराते हैं उनका तरीका रहा है बात करने का कि जब वो किसी वर्ड पे ठहराते हैं, किसी लफ्ज़ पे आके ठहराते हैं तो आखिरी हर्फ, इसको बोलते हैं हर्फ, a letter is called as हर्फ and the vowel sound is called as हरका। क्या बोलते हैं? हरकत। हरकत के माने क्या? What is the meaning of हरकत? कैसे प्रोनाउंस करते? वो ज़बर ज़ेर पेश होते हैं। In Arabic language you are not going to use these words। ज़बर ज़ेर पेश नहीं बोलना, वो उर्दू का लहजा हो, उर्दू ज़बान में हो। बच्चों में जो पढ़ाते हैं हम अलीफ ज़बर आ बे ज़बर बा, ये मैं गलत नहीं बताता लेकिन मैं वैसे नहीं पढ़ाता। Rather ऐसे अलीफ फतहा, because you have to use the right words। दम्मा दीनी दाद कैसा पता नहीं बताता हूँ आपको। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग सही तरीका इस्तेमाल करें तो फिर थिंग्स विल बी इजी फॉर द किड्स। अब फिर उसको तुमने एक तरीका पढ़ा दिया, फिर कोई और आएगा उसको सही पढ़ाने के लिए, तो बच्चे के लिए बड़ी परेशानी होगी, समझे? जो पहले से पढ़ा है उसको भुलाना, फिर नया बिठाना, ये डबल मेहनत है। तो शुरू से ही इसको सही करना, और खासतौर से जिस तरह से पढ़ाते हैं लोग, अगर ऐसा वर्ड है जीम ज़बर जा बोल देनी, मीम ज़बर मा जमा, फिर लाम दो पेश जमरुन, आगे पीछे जाते ना, इससे जहन पर बहुत प्रेशर पड़ता है बच्चों को। हिंदी में ऐसा नहीं होता। If the same thing was written in Hindi, like for example the word Hindi itself, अब ही क्या कि वो ही दादा दादी वो सब बोलते हैं नहीं बोलते, डायरेक्टली पढ़ते नहीं। You are getting my point? When you can read a language like Hindi directly, say for example I want to say Nisar, I write Nisar directly। अब उर्दू में अरे क्या कहता हूँ नून ज़ेर नी सात अलिफ सा फिर निसा, आगे पीछे। बट शुरू से ही अगर बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह देन इट विल बी मच बेटर फॉर देम, इजी होगा उनको, वरना हिचक करके पढ़ते परेशानी होती है। एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, इफ Khalid is a name, in reality it is Khalidun। in complete sense it is Khalidun। Please bear it in mind. So how many words do you identify from the Quran? You have umpteen number of words you can do that. Okay? So only when you do, you will get that idea. If you don't do, it will be difficult. Okay? Now, this is basically Muslimun. And this becomes Muslimatun now. The tanween shifts. The tanween cannot be here. It has to shift. Tanween will never come on the first letter of any word or somewhere in the between. It will always come only on the last letter of a word. And in that case, that word is Noun। definitely a noun. Sometimes it's also an adjective, we'll see later on. Okay, but then take it for granted that all nouns will have tanween. Few nouns are there, exceptions बोलते हैं उसको, इस्तिस्ना बोलते हैं, where the tanween is not there. That I'll teach you later on. But majority, अब मैं बोला खलम, if I say खलम, what is it in full form? Don't write anything, just listen. Okay? What is खलम? pen, Yeah, but then it is खलमुन. If I say kitab, किताबुन। kitabun. If I say this word, what is this? Yeah. So in full form it is kalbun, yeah, kalbun. And if I say this, qalbun. If the sound changes, meaning goes for a 6. Huh? And you should be very careful. I see, alhamdulillah, you read it directly. मैंने ज़बरदस्त पेश नहीं लिखा, फिर भी आप पढ़ लो। and you know what is the whole thing you are going to do here? You will say, can you say kalbin? No. Can you say kalban? As of now at least? No. All you can tell now is, or you will say kalbu? नहीं। No. You will say kalbi? नहीं। Or you will say kalba? The knowledge. अब जितना सीखे हो, so what happens is, based on that you know you have to give this is the correct thing. kalbun, And the meaning in English is not just a dog, it is a dog. What is this? Because we don't have a, is, are, am, and as a separate words. articles. In fact, they don't exist at all in Arabic.
Of course, the D is there, but not as a separate word. That I'll teach you. So, what I taught you last class was introduction to these nouns, and of that we taught you one word, that is one of the formulas. Muslim, if you add that, it becomes, in full form it's Muslimun, Muslimatun. Or it can also be Muslim and Muslima. What is the specialty about this round tab? वो जब full stop आता है तब वो हा बन जाता है. Yes, when you stop at it, it becomes the shape of ha. Ha, not ha. Just ha. Then, secondly, it appears only and only and only on feminine nouns. On feminine. Very rarely it comes on masculine. जैसे कि उसामा है, तलहा है. Very rare. But majority, it appears, it immediately gives an idea that this is a feminine. कोई उसको यहाँ अरबी में मुअन्नस बोलते हैं. Masculine को मुज़क्कर बोलते हैं. I am not going to bother you about it. Terminologies. You don't get lost into that. It is not required right now. It is not. First, you understand the concept. Sir, and this ये था जैसे कि नारुन हामिया जी तो हामिया मतलब ब्लेजिंग नार मतलब अंगार तो हामिया वो एडजेक्टिव कैसा औरत हो सकता है या तो अंगार औरत नहीं एक बताऊं काला रात बोलते हैं काली रात बोलते हैं काली रात नार in Arabic is feminine in gender nar but the word nar some exceptions are there. See, the word like nar is not feminine, I mean masculine. This, as you go in Arabic further, then you know. Supposing you come across a word like even nafs. नहीं अब जैसे कि even the word nafs, nafsun. What is nafs? Masculine or feminine? Now you may say it is masculine. Masculine. No, it is feminine. That you don't bother. As you go further, आगे जाएंगे तो मालूम नहीं जैसे कि अंगार जल रही है अब जल रही है wait. Every language has its own rule. Every language has its own. What is masculine in English maybe or may not be masculine in Urdu. Correct. Maybe or may not be in Arabic. नहीं So don't apply that sense. नहीं वो सेंस नहीं डाल रहा मैं आपको क्या पूछ सकता हूँ अब जैसे कि कार आ रही है और दरवाजा खुला है अब तो दरवाजा खुला है दरवाजा मस्कुलिन होगा दरवाजा खुला है तो दरवाजा के वर्ड में मस्कुलिन फेमिनिन मालूम नहीं होता उसके बाद जो वर्ड आता है खुला है या आ रही है जा रही है जल रही है उसमें मालूम होगा वो अगर तुम्हें अरबी से जानना चाहते हो वरना आई विल टीच यू वो अरबी में कैसे बोलेंगे आप या तो पहले से तुम्हें सुन के रहना किसी से या किससे मतलब डिक्शनरी देखना किससे पूछना ओके कुछ बातें से ये जो मैं बता रहा हूं आपको दिस इज से समथिंग 99% ऑफ द वर्ड्स आर लाइक दिस जेनरिक इससे भी 1% मैस्कुलिन होगा कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिसके अंदर नाउन का भी नहीं था फॉर एग्जांपल मरियम मरियम एंड देन गो तभी ऑन दिस नाउ दैट मरियम इज मैस्कुलिन और फेमिनिन वो सुनकर भी मालूम होता है कि ये फेमिनिन का है नाम फेमिनिन है so don't go in, I mean that's the way it is okay now later we were talking about this round ta one it comes only on feminine singular okay and when you pause at it it becomes ha no other letter in Arabic changes okay for example kalbun was there if you stop this ba is kalb only sakin वो दूसरा फॉर्म नहीं इख्तियार करता समझ में आ रहा दीक है दीकुन कह रहा है तो दीक वो का आवाज नहीं बदलती लेकिन इसमें क्या होता है मुस्लिमतुन फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो मुस्लिमतुन लेकिन ठहराएंगे तो मुस्लिमा yes this is small little thing you should know there's no big deal मुस्लिमा और फिर ये ता ऐसा वाला शेप एक वाला ता जो है कभी भी शुरू में या दरमियान में नहीं आता एंडिंग में हमेशा वो आएगा तो कहाँ आएगा जैसे टोपी कहाँ पहनते हैं सर पे पहनते हैं where do you wear the cap it's always on the supposed to be on the head so this will always appear only on the last letter of a word so that is about feminine now quickly I'll give you a few more words supposing I say something like
Abid. What is feminine? Abida. Abida. Sajid. Sajida. Shakir. Shakira. Zalim. Zalima. Getting it? Mu'min. Mu'mina. No mo. Mu'mina. ये mo बोलने वाला सब Mu'mina. there is no mo. You take the book and see mo आवाज नहीं है वो उर्दू में होंगी तो क्या Mim based mu. Quran is Quran. Quran is in Arabic and it has to be read the way it was dictated by Allah Ta'ala. Allah Ta'ala did not say mu'min. Allah Ta'ala said Mu'min. mu'min. Jibril Amin did not say mu'min. Jibril Amin said mu'min. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not say mu'min. He said Mu'min. mu'min. Hamza is there. And there is a u, not o. And in reality there is no o sound in Arabic. You know that? Arabic में o sound नहीं है. O है अलबत्ता. Mouth, फौखा, okay. Low, o sound है. O sound है ही नहीं Arabic में. है ही नहीं. Anyway, so here you know how to convert from mass. But what is the body language? How do you go about expressing this in using the body language? Don't just sit tight and read. Keep your lips free. Use your imagination. So where do you put the masculine? Right side. Right. Always the men on the right hand side, and the women will be on left. Left. So the body language, one finger will be used for singular, four for plural. And if I say, can I say I am Khalid there? I can show them and say I am Khalid? No, I have to say I for here. If I ask you, who are you? Can I say, who are you? Who are you? I can say, I can point somebody there and say, ask, who are you? It will be wrong. I should point to you, you point to me, who are you? Okay, who is he? Evening. Who is he? Who is he? So he, you and I. He, repeat. He, You and I. But instead of, now we are not learning English. Substitute the Arabic words. Huwa. Huwa. क्या बोलेंगे? Huwa. Where in the Quran is the word huwa? Kul huwa. Kullallah nahi, kullallah nahi. Go see how people read. Kul huwallah बोलते हैं, kul huwallah बोलते हैं, kullallah बोलते हैं. No, it's all wrong. Kul huwa है wow. फिर wow को अल्लाह के साथ मिलाना. Kul huwallah. Your lips should become round and protrude outside. They should project when you say that. Kul क्या नाटक कर रही? When it is told that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to recite the Quran, either in Salah particularly, his lips would move. He will not stay tightly. कुछ और पढ़ता है. कैसा अल्लाह वाला सिखाना बच्चा को. When they don't know, we have to educate them. Okay, but they do it in a nice way. तुम करें तो गलत चीज. Never do that. Never criticize people. Never say you are wrong. You have to have a way of it. Okay, so Kul huwallahu wow. Qul huwallahu. Wow, the letter wow itself gives you an idea. See how it is written? It tells you that your lips should become round. Wani, many people say wa. Kul huwallahu. Wale, no. Habis huwallahu. Huwallahu. Qul huwallahu. Kul huwallahu ahad. Yeah, read as it's one continuous word. Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Don't stop after kul. You will find it difficult. Kul huwallahu. Kul huwallahu. Kul huwallahu ahad. Now ha is ha. Anyway, then I taught you how to say small sentence using these things. That is, if you want to say he is a Muslim, how will you say? Huwa Muslim. Very good. MashaAllah. What is the word? Huwa. Huwa Muslim. Muslim. Okay. And she is a Muslim lady, how do you say? Hiya Muslim. Yeah, there comes a hiya. Huwa Muslim. Hiya Muslim. Body language? Hiya Muslim. Yeah. Now you can substitute any word here. Huwa Khalid, Hiya Fatima, whatever it is, whomever you know. At least some 50 people who come across in the next week, when you come across, when you see them, you should tell. If you see that Advani's photo there, you should say Huwa Advani. Practice this. If not, you will not learn. If you see that all those people, I have seen that nowadays very bad things happening. People are putting hundreds of photos in one big banner. मालूम है कि ये तस्वीर है, मुझे पता नहीं देता. लेकिन the city is becoming so dirty. उठा सोचता वो भी ऐसे सोचता है माशाल्लाह दिल खुश रहा. So you know who this guy is. You can stand in the post and say, okay, हुआ साजिद है, हुआ करीम है, हुआ अब्दुल्ला है, हुआ. You just keep telling him. Only then you learn language. ज़बान पर कर language आती है. दिमाग से मतलब खाली लिखने पढ़ने से ज़बान नहीं आती. You have to
The more you exercise your jaws, the more fluent you become using the language. If you're just restricting yourself to reading and writing, you will never be able to say anything. I think I taught you one more formula also last class. What was the other formula? Yeah, that was what? You said Qul ya ayyuhal kafirun. What is na? Kafir plus there is a sound Una, which will be now become Kafirun. As Kafiruna, or if you stop it is Kafirun. So that is the formula. Any word plus Una will become Kafirun. Abid said Abidun. Abidun. Rashid Rashidun. Zalim Zalimun. Mu'min. Mu'minun. Sajid. It goes on and on and on. Some other plurals also are there, but then I'll teach you later on. Alim से उलमा भी होता है. Okay, there are different some patterns are there. तालिब से तालिबुन नहीं होता. Some other format is there. That you learn later on. But this is major. ये अब रमजान के महीने में क्या होता है मालूम? ये सुनाई देता. यालमुन तालमुन ये फलुन तफलुन ये क्या है मुश्रिकुन काफिरुन ये खालिदुन ये कौन से ज़्यादा सुने आता. Okay, Allah Ta'ala clearly told in the Quran وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. You cannot make a haste. अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कभी कभी रमज़ान का दिन का कसो का गया शाम का दो कर सब बात करते हैं यार दीवाना क्या रहेगा तुम. When you are reading Quran, Allah is talking to you. When you are in Salah, you are talking to Allah Ta'ala. And how can you take that speed? Forget that. Allah Ta'ala himself has said, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ Tartila. slow measured tones. धीरे पढ़ना. इतना भी धीरे नहीं. Alhamdulillahi. And normal speed. Not very fast. वो जो अलग है तजवीद के लोग जो फनकार होते हैं वो तब बच्चे खेल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं. That is a different science out of it. I mean that's a skill. वो हर तुम्हें में सब खाली होने की जरूरत नहीं है. But then definitely you cannot run like an express. Express train के सामने स्लो आती है. यालमुन तालमुन क्यों आता सर वो? क्योंकि वे all those are masculine plural there. बहुत सारे हैं सर. एक से प्लूरल भी आता है, मस्कुलर भी आ सकते कभी. Masculine is plural और क्या? Masculine plural is और क्या भी नहीं हुआ. Una in Arabic comes only for masculine plural. Remember, whether it is nouns or sometimes even in verbs. Una always gives the idea of plurality of masculine. जो हम आवे तो अब ये हम जो है first से they are. For that you say They are. हम काफिरुन क्या बोलेंगे? हुआ काफिरुन नहीं बोलेंगे ना. He नहीं बोलते ना. They हम काफिरुन. Right? अंत काफिर अंतुम काफिरुन. अच्छा काफिर किसको बोलते हैं? Whom do you call a kafir? अल्लाह की नाफरमान. जो अल्लाह की नाफरमान जो कुफ्र करता है ना. What is कुफ्र क्या? What is कुफ्र? कुफ्र मीन्स अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करना. दूसरों को मानना. जो What शिर्क? वो शिर्क अल्लाह के. What is कुफ्र? सही बिलीफ को जो डिनाई करता है. You know what? A farmer in Quran is there. A farmer is called as kafir. किसान को अल्लाह ताला ने काफिर के नाम से पुकारा है. ये नहीं कि वो नाम मुस्लिम काफिर है. I mean किसान है. मुसलमान कोई भी किसान हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, नसारा हो, जो भी हो. The word farmer. Okay, the farmer is called as kafir. There is another word also, fallah बोल के भी है. लेकिन kafir also is one of the word for farmer. Why is he called kafir? In Arabic में क्या है? लेबला नहीं. जैसे बहुत ही स्टूडेंट हार्ट ऐसा सब बोल के. There are not just labels, chair, pen ऐसा. They have an internal meaning. तुम्हारे homework देता हूँ. We know this heart, right? I think I have given you that. Heart. What is heart? दिल. Okay. उसको हृदय. उसे क्या होता है? हृदय के लिए बोलते हैं. Okay. हृदय. वो तमिल में क्या और बोलते हैं. मैं तमिल में बोलते हैं. लेकिन अरबी में उसे बोलते हैं. अब ये अरबी में खर्ब जो है, उसका नाम खर्ब क्यों है? It is not just here you understand heart.
Dil, Hridaya, what it is. But when you talk of Qalb, this is why you have to learn Arabic. This is why you have to learn. Though ideas, the hidden idea, the actual meaning you will not get from these things. जो माना तुम्हारे यहाँ से समझ में आएगा, वो हाथ में, दिल में, सब कहीं में भी समझ में नहीं आता. Only in Arabic. The word qalb has something to do with change. Very good, mashallah. नहीं तो जब था, एक बार शायद सब्जेक्ट करा तुम्हें, मेरे word to day word एक फंसा था मैं. So many people have sending across. Anyway, it's there. That's true. Qalb means something which keeps changing. There's one dua. I don't know if you have heard this. या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब तब्बित क़ल्बी अला दीनिक. क्या बोल रहे हैं? क्या कहने वाले? आमीन. आमीन तब तक है सब क्रिकेट में रहता है ज़बान पर आमीन. हाँ? ना इबादत में संजीदगी है, सीरियसनेस है, ना दुआ में. रमज़ान के महीने में वो आदत यहाँ पर चाहिए पढ़ो बोल के. दुआ पढ़ी नहीं जाती, दुआ मांगी जाती है. और किसी के मांगने पर हमें आमीन बोले तो वो कुछ इस्तिमाही दुआएं होती हैं वो. लेकिन इंडिविजुअली व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट, व्हाट इज आई डोंट नो. मुझे नहीं मालूम कि आपकी जरूरत क्या है. तो यू हैव टू आस्क दुआ फ्रॉम अल्लाह ताला. नाखून में दर्द होता रहेगा, अल्लाह ताला से पूछे अल्लाह से मुझे दूर करो. वो हजरत को क्या मालूम है तुम्हारे नाखून में दर्द है सब. वो एक आम दुआ मांगते हैं. अब उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, जोर से दुआ मांगना कि नहीं मांगना, उसको छोड़ दो. But dua is what? Something which you and I you have to ask straight away to Allah Ta'ala to get it. मेरे बिहाफ पर निकाह भी सच कर डालना, मेरे बिहाफ पर उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, बल्कि चलता है? होता है क्या? क्या भी कबूल किया कदम? क्या बोलते हैं? पहले तो भी हाउ बोलते थे, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं. अब किसकी की बिना पर बिहाफ पर नहीं बोल सकता उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें खुद बोलना. तो अल्लाह ताला से मांगने के लिए जो है ना, you have to tell on your own. आम दुआएं हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बोल दे अपनी जगह. लेकिन when was the last time you sat down and asked for Allah Ta'ala? Very important, right? So here kafir, I was telling you, is, you know what? Because what is his action? What does he do? He takes a seed, he digs the ground. He doesn't throw it on the ground like that. He digs it till he gets data and then he covers it up. That means he is hiding a fact. What is it? He is hiding a fact. You, me, everybody. जब भी इसको देखा, कैमरा को देखा तो कैमरा को बनाने वाला याद आता हमारे को. हाँ, कंप्यूटर देखा तो प्रोग्रामर याद आता, वो हार्डवेयर वाला इंजीनियर याद आता. तो आसमान जमीन सूरज देखेंगे तो क्या उसका जो खालिक है याद नहीं आना आता, लेकिन उसको भुला देते. या फिर दूसरे जो लोग करते क्या करते, दरगाह में जाते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, उनसे मांगते. मांगना किसे है? अल्लाह से. तो मालूम अल्लाह है, बल्कि अल्लाह है मालूम होने के बावजूद अगर हम किसी और से कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, मिनिस्टर से की, मालदार से की, सेठ साहब से की, नहीं वो जो भी है, तो फर्स्ट आपस में बोला कि छोटी से छोटी तुम्हारी हमारी जैसे जरूरत है. जैसे वो वर्ड आया है कि जूते का वो लेस वो भी टूट गया तो इफ यू रिक्वायर फर्स्ट हाउ विल गो टू अल्लाह ताला से मांगो. फिर अब मतलब हमारे पास नया माल है, दौलत है, जब खरीदेंगे एक डजन, किसको मांगो? ज़्यादा से ज़्यादा दखल हो जाएगा या वो पैसा कोई चुरा लेगा तुम्हारा, कुछ भी होगा. पहले किससे पूछना? अल्लाह. सो इफ वी अल्लाह को भुला दिए बावजूद उसके जान करके और किसी और की तरफ हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं तो वो कुफ्र. समझे? यानी किसी चीज को छुपाना, हक को छुपाना, किसी चीज को नहीं, मतलब हक को छुपा करके हक को छुपाना. अब यहाँ पर क्या है? दिस अप्लाइज टू अल्लाह ताला. अब मिसाल के तौर पर जनरली बोलता है ये जो वायरिंग है नहीं, वो काफिराना वायरिंग. क्या मतलब? अंदर से छुप के आए. पहले बाहर रहता है वायरिंग, नहीं वो पहले बाहर रहता है बिल्डिंग आपको, अब कंक्रीट के अंदर वो काफिराना यानी छुपी हुई वायरिंग वो. अच्छा. गॉट इट? although we don't say kafir wearing, I'm just giving you an example. एक हकीकत को छुपाना, और यहाँ क्या माने? अल्लाह के साथ को छुपाना. हाँ, तावीज़ा क्या तो ईमान कैसा वो में है कि वो सब नहीं मालूम. अगर उन्हें वो लेकिन अगर तवक्कुल उसका पर यह है कि ये रहा तो उसमें जीरो में मरनों में बरकत हो रही है, तो फिर अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा. हम ना नहीं, मैं तो फतवा नहीं दे सकता, बट यू नो हक को छुपाने वाला इस माने में यहाँ
दायरा इस्लाम में हक यानी कि अल्लाह ताला को अल्लाह जानकर फिर भी दूसरों की तरफ जब वो असल जानने के बाद छुपाने वाला काफिर। दैट इज द आइडिया। चाहे दीन एतबार से हो चाहे दुनिया में एतबार से हो, हक बात को अगर छुपाने वाला जो भी हो तो हाँ काफिर। मेन हमारा वास्ता क्या है? अल्लाह ताला की तरफ, वो मेन सबसे बड़ा मेन। तो झूठ नहीं बोलना, कुछ जानता ही नहीं वो जाहिल होता है। ये अच्छा सवाल है, नहीं बोलते अच्छा सवाल है। हर अल्लाह ताला जो है, हालांकि क्लास उसकी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि आप पूछ दिए। तमाम कायनात अल्लाह ताला की, हर पैदा होने वाला बच्चा उलमा का फरमाते हैं सच है कि फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा, चाहे वो यहूद के घर में पैदा हो या नसारा के घर में पैदा हो, मारवाड़ी के घर में पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो, फितरी तौर पर उन्हें मुस्लिम होता है। वो क्या है वो बात समझने में जरा वक्त लगता है, लेकिन बालिग होने से पहले अगर कोई मर जाता है किसी भी घर से हो तो शरीयत के एतबार से पाता था, हमारा मालूम होता है कि वो उसके कोई हिसाब किताब नहीं, उन्हें आया उन्हें गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब ये जो सवाल है, ये जो लोग हम अब किसी दुनिया के किसी कोने में कोई लोग रह रहे हैं जहाँ दीन नहीं पहुंचा, इस्लाम नहीं पहुंचा, उसकी रिसायत नहीं हुई, मुगल मदीन गए नहीं वहां पर, ना दावत वाले गए, ना तबलीग वाले गए, ना जमात इस्लामी, ना सलफी हनफी, कोई भी नहीं जा सका, एक रिमोट प्लेस में है। अब उनका मामला क्या है? वो लोग मर गए तो अल्लाह ताला उनके साथ क्या करेगा? ये सवाल उलमा कराम को पूछा गया था और चंद लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है उसका। बताया कि दुनिया में होता ये है कि अगर ये दो फर्द हैं ए एंड बी, ये ने बी को कर्जा दिया था, सब जो कि 20 रुपये 100 रुपये जो भी है। अब बी जो है चंद दिन बाद दे दो बोलता, फिर दिया नहीं, महीना 2 महीने साल ऐसा चलते गए वो। अब इन्हें जब बार बार तकाजा करता है तो एक बार बोलता है कोसा पैसा कई का पैसा कब दिया तो बताऊं, फिर उन्हें क्या करके ट्राई करता। तो हर मजबूर इंसान जब उन्हें आखिर में आजिज हो जाता है, मजबूर होता नहीं, तो उन्हें चाहे मुसलमान हो, चाहे नसरानी हो, क्रिश्चियन हो, चाहे यहूद हो या कोई भी हो, एक बात बोलता हूँ सब पर, किसी के ऊपर मतलब जुल्म बहुत हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर उसका जुल्म हो गया, अब उन्हें उसका वो दिफा नहीं कर पा रहा है, अपना हक उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या करता बोलो उन्हें ऊपर उठाता, अंगली दिखाता, वो इंग्लिश में गॉड बोलेगा, तमिल में कडुल बोलेगा, हिंद कन्नड़ में देवर बोलेगा, जो भी बोलेगा उन्हें भगवान बोलेगा, जो भी बोलेगा। एक क्रिश्चियन नहीं बोलेगा कि जीसस तेरे को देख लेता, एक हिंदू नहीं बोलेगा रामा सीता गणेश तुझको देख लेता, जनरल गॉड। वो एक ऐसी चीज है फितरी तौर पर जबान से वो चीज निकलती, उस वक्त सारा चीज अल्लाह ताला भुला देता उसको, रामा सीता गोविंदा सब भुला देता अल्लाह ताला उसको, बेसाख्ता पीछे कोड निकलता। उन्हें क्या नाम से पुकारता कि उन्हें ईश्वर बोल रहा कि उन्हें भगवान बोल रहा कि गॉड बोल रहा कि लॉर्ड बोल रहा कि क्या की, लेकिन उस वक्त तो मालूम होता है कि इन तमाम चल्लो पंजुओं से बढ़कर एक इलाह है, एक मालिक है। उन्हें जो है इसके साथ क्या करता, अदल का मामला इंसाफ करता मेरे साथ। उस वक्त के बाद से वो अल्लाह ताला की हुज्जत हुआ, अल्लाह ताला हर इंसान के जिंदगी में ये मौका फराहम करती, चाहे ना मुसलमान हो, मुसलमान घर में पैदा हो गए तो मुसलमान समझ को जीना नहीं, खुशफहम नहीं रहना, बहुत इंपॉर्टेंट। शहादतें, शहादा पढ़ना, समझना, उसे डिक्लेयर करना और फिर जिंदगी इस तरह पर करना जो कुरान में है और अहादीस में है। खाली लिबास मिसवाक वो तो खुशफहमी में रहते हैं हम लोग। सो हर अल्लाह ताला दुनिया में भेजे के बाद हर किसी के साथ ये मौका उसकी जिंदगी में लाता, कहीं ना कहीं चलते चलते मार लगेगा, उठे को उन्हें उठाता हो या किसी गणेश का नहीं करता, गणेश का रहता है नहीं करता उन्हें, सीता को भी नहीं याद करता, मेरी को भी याद नहीं करता उन्हें। हमें या अल्लाह बोलती जो अल्लाह का नाम है अल्लाह, कोई और कुछ नाम और नाम से पुकारता है। अगर उसको अल्लाह की जात मालूम भी नहीं है लेकिन उसकी नफ्स, उसकी रूह, अब फिर चाहिए कि उसके बाद से वो मामला उसी की तरफ रुजू करे, चाहे उन्हें फतर पूछता हो या देवी देवताओं को पूछता हो, किसको भी पूछता हो, उसके बाद से वो घड़ी उसकी जिंदगी में आने के बाद he is supposed to reflect that. Anyway, that is not the subject topic. So now काफिरून, तो हम काफिरून बोलेंगे। फिर क्या था, कई औरतें हैं क्या बोलेंगे, हुन्ना काफिरूना, नहीं काफिरात, काफिरात, हुन्ना काफिरात, काफिरात, हुन्ना काफिरात, हुन्ना काफिरात। अलिफ और ता क्या होता, हुन्ना काफिरात। ओरिजिनल इट वाज काफिरातुन, you stopped this काफिरात।
मुस्लिम से मुस्लिम मुस्लिमा। हाँ, सूरह अहज़ाब और तहरीम में है जो किताब में लास्ट किताब में जरूर में है। हाँ, अब मोमिन मर्द, मर्दे और औरतें, वो सारे की अल्लाह ताला एक लिस्ट अलग से लाए होंगे। अगर वहाँ रोके नहीं तो काफिरातुन ना, कंटिन्यू पढ़ते काफिरातुन, रोके नहीं तो हाँ। काफिरातुन। हो सकता है कभी इन भी होगा, कभी अन भी होगा, वो सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर देखना पड़ेगा, वरना डायरेक्टली पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे काफिरातुन। मिसाल के तौर पर होता क्या है मालूम, एक वर्ड है अज़ाब, पढ़ो उसको। अज़ाबुन अलीम। हाँ, यहाँ पर भी तन्वीन है, लेकिन रुक रहे वहाँ। हाँ, यहाँ पर भी तन्वीन है, तो यहाँ क्यों नहीं अज़ाब अलीम क्यों नहीं पढ़े? वहाँ नहीं रुक रहे। नहीं रुके इसलिए पढ़ना पड़ता करना है। पड़ता रुक गए तो है। ओके, उतना छो। इफ द तन्वीन कम्स इन बिटवीन, कोई भी हरकत दरमियान में आती है तो पढ़ सकते हैं, आखिर में आती है तो उस हरकत को चाहे तन्वीन हो या जो भी हो उसको साकिन कर देंगे। मुझे ये बताओ कि ये जो असल में सिंबल ये साकिन का क्या है? कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, व्हाट इट इज, पर असल में ऐसा लिखते हैं इसको। अगर ये जबर ये दो पेश है इसने तो उसको जब हम पहचानना, अगर अरबी का वैसी है ज़बान सीखेंगे तो आ जाएगी आप। और अज़ाब वाली वहाँ तो पेश दो पेश लगाने से पता लगता है। अगर नहीं बोले तो उस वक्त हम पहचान बोले तो वर्ड को बार बार पढ़ने से याद आता है यानी। इसीलिए हम जो कोर्स आपको सिखाते हैं वो अल्फाज हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो अमूमन बार-बार, फिर उसके बाद उसी बिना पर दूसरे बना लेंगे आप। मैं आपको एक वर्ड है कुरान शरीफ में आप हैं खितमीर, खितमीर एक वर्ड है, खितमीर, खुतमीर नहीं, खितमीर एक जगह। अब मैं उसको पढ़ा दूंगा, सभी कहूँगा खितमीर को पूरे रमजान के अलावा काफी सुनाई देगा। वो मुश्किल से कोई हाफिज सलाम में कांद भी वो आयत पढ़े तो वो आ जाएगा, लेकिन वो टाइम पर तुम्हारे दिमाग से गुजर जाता हो, क्या नहीं कर पाते तुम। अब मैं मेहनत कर पूरी पढ़ाया भी अभी यू विल फॉरगेट इट। तो इस वक्त मैं वो चीज़ें पहले पढ़ाते हैं हम लोग हमारे इदारे में जो ज़्यादा इस्तेमाल में आए हैं, वो भी पढ़ाएंगे, जो कम है वो भी पढ़ाएंगे। जैसा कि कल जो कल था, हाँ। ये हम सुने थे बार बार और हाँ। माने की और तो हाँ। समझे थे तो